Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Shahid, roll number 28, BS Zoology 8th semester. Today, the topic of my presentation is biotic parameters. First one, the definition of biotic parameters. The parameters of biological nature that affects the aquaculture fisheries is called the biotic parameters. And these are parameters are aquatic vegetations, phytoplanktons, zooplanktons, periphytons, benthos, phytobenthos, and at the end fishes. First one है aquatic vegetations. Aquatic plants are plants that have developed or adopted to living in aquatic environments. Aquatic plants वो हैं जो कि aquatic environments के अंदर रहते हैं, and they are also referred as hydrophytes or macrophytes to distinguish them from alga and other mycophytes. और ये दो टाइप्स के हैं, macrophytes और mycophytes. In lakes and rivers, macrophytes provides cover for fish, substrate for aquatic invertebrates, provide oxygen and act as a food. They have significant effect on soil chemistry and light levels as they slow down the flow of water and capture pollutants. इनका जो सॉइल केमिस्ट्री और लाइट लेवल है उसके ऊपर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है. ये वाटर की मूवमेंट्स को स्लो कर देती हैं एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं, और उनके अंदर से जो पोllutants हैं, जो गंदा मादा है उसे जो है वो पकड़ते हैं, जो पोल्यूशन काज करता है, पोllutants जो हैं उनको कैप्चर करते हैं ये प्लांट्स. इस तरह से ये पोल्यूशन को कम करते हैं. एंड द सेकंड वन है phytoplanktons. Phytoplanktons increase the dissolved oxygen in the pond water and reduce gases like the ammonia, nitrate, hydrogen sulfide, and the methane, etc. It maintains the quality of the pond water and reduces the amount of toxic substances. Planktons are used as a natural food for fish. They increase the water temperature and bring its stability. They have to reduce the population of पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और दूसरी जो टॉक्सिक गैसेस हैं उनको कम कर देते हैं. फिर जो वाटर है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको कम करते हैं. प्लैंक्टन्स को एज अ नेचुरल फूड भी यूज़ किया जाता है फ़िश के लिए. फ़िश जो है वो इसे एज अ फीड जो है वो इसको खाती है, इसकी फीडिंग करती है. उसके बाद ये जो है वो टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हैं. पॉपुलेशन जो है वो पैथोजेंस की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कम करते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स. नेक्स्ट वन है ज़ूओप्लैंक्टन्स. ज़ूओप्लैंक्टन्स जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं. Zooplanktons are drifting organisms living in oceans, particularly the pelagic and the littoral zones, as well as in rivers, lakes, and ponds. Majority of them are microscopic, unicellular or multicellular forms with size ranging from a few microns to a millimeter or more. Zooplanktons such as baleen shrimp, rotifer, copepods, and the larval stages of the various aquatic organisms are treated as food for prawns and shrimps. Zooplanktons are the heterotrophic groups of planktons as they feed on phytoplanktons. Means that के जो zooplanktons हैं वो heterotrophic हैं और zooplanktons जो हैं वो जो दूसरे autotrophic हैं phytoplanktons उनको खाती हैं. फिर जो zooplanktons हैं ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं कि पेलाजिक और लिटोरल जोन्स के अंदर पाए जाते हैं, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है इनके अंदर वो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी है. उनकी साइज़ रेंजिंग भी डिफरेंट है, जैसा कि वो अगर यूनिसेलुलर है तो उनका साइज़ बहुत ही कम होगा, बहुत ही फ्यू माइक्रोन से मिलीमीटर्स तक होगा, और अगर वो जो है वो मल्टीसेलुलर है, ज़्यादा बड़ी स्पीशीज़ हैं ज़ूओप्लैंक्टन की, तो उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट वन है पेरीफाइटन्स.
Periphytons is comprised of group of microorganisms living on submerged substrate. The group include algae, filamentous algae, bacteria, protozoans, free-swimming microorganisms such as rotifers and cladocyrons. Is readily consumed by browsers such as Mashare, Laho, uh, Rambiophimbratus, and is also helpful in improving water quality by producing oxygen, tapping suspended salts and taking up ammonia and nitrates. ये हैं पेरीफाइटॉन्स. पेरीफाइटॉन्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, कंप्रेस्ड ऑफ ग्रुप है, जो कि सबमर्ज सबस्ट्रेट के ऊपर आता है. और इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है? फिलामेंटस एल्गी आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोन्स फ्री स्विमिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसके अंदर रोटिफर्स हैं, क्रेडोसिगॉन्स हैं. और ये क्या करते हैं? कंज्यूम्स पेरीफाइटन्स को कौन कंज्यूम्स करता है? जो मशीर है, राहू है, रैम्बियोफिम्ब्रोटस है, ये इसको कंज्यूम्स करते हैं. इसके अलावा ये वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ज़्यादा करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं. जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर उसको निकालते हैं, जो इमोनिया है उसको ख़त्म करते हैं, नाइट्रेट को ख़त्म करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स को ख़त्म करते हैं. उसके बाद है बेंथोस. बेंथोस ऑर्गेनिजम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स. Benthos consists of those organisms which live in or on the bottom substrate. One of the most outstanding features is the partial or complete field dependence, direct or indirect, of the higher organisms on benthos. They are also involved in the mineralization and recycling of the organic matter. Benthos divided into the microbenthos like insects, mollusks or crustaceans, and the macrobenthos like bacteria, protozoa, roundworms living in or bottom the substrate. अब बेंथोस के बारे में बता रहा है कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉटम जो सबस्ट्रेट है उसकी बॉटम में भी रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं. और इसमें से जो ज़्यादातर है वो क्या है कि कंप्लीटली या पार्शली वो डिपेंड करते हैं फूड के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स और बेंथोस. जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लो क्लास ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बेंथोस पर डिपेंड करते हैं अपनी किसके लिए? अपनी फीडिंग के लिए, उसके ऊपर, अपने फूड के लिए उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. और ये जो हैं वो मिनरलाइजेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स की रिसाइकलिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं. अब बेंथोस को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी के अंदर. एक माइक्रो बेंथोस है, एक मैक्रो बेंथोस है. माइक्रो बेंथोस के अंदर इंसेक्ट्स आएंगे, मोलस्क्स आएंगे, क्रस्टेशियंस आएंगे. और जो मैक्रो बेंथोस है उसके अंदर बैक्टीरिया आएगा, प्रोटोजो आएगा, राउंडवर्म्स आएंगे. और इनका जो लिविंग हैबिटेट्स है वो या तो जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर या फिर उसके बॉटम में, ठीक है, वाटर के अंदर. और नेक्स्ट वन है फाइटोबेंथोस. Phytobenthos, the organisms living on the surface of the submerged and floating aquatic vegetations are called the phytobenthos. यानी कि वो organisms जो कि submerged या floating aquatic vegetations के ऊपर रहते हैं, इनको phytobenthos कहते हैं. Are most important fauna because they constitutes a major source of food for many species of fishes. बहुत ज़्यादा जो फिशेस की स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये एक मेजर सोर्स है एज अ फूड, इसलिए इनका जो फाना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. फाइटोबेंथिक ऑर्गेनिजम्स मेनली कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट लार्वे, स्नेल, रोटिफर्स, नीमाटोड्स एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा. और इसके अंदर क्या कुछ आता है? इंसेक्ट लार्वी आते हैं, स्नेल्स आते हैं, रोटिफर्स आते हैं, नीमाटोड्स आते हैं और स्मॉल क्रस्टेशियंस आते हैं. The phytobenthos may be collected effectively with the help of the Wisconsin traps. This is simply a convex and gaze net with closable mouth. Next इसके बाद है fish. The sampling program of fish be designed to cover all parts of lakes and reservoirs, including the various depths. A large number of methods are available for the collections of the fish.
The sample should have a many size of each fish as possible. A sample of 20 to 30 specimens of each kind in each size group is a good representative sample. Data with regard to each fish such as length, weight, sex, etc. जो फिशेस हैं इनकी जो सैम्पलिंग है, इनको डिज़ाइन करना कि ये तमाम पार्ट्स ऑफ लेक्स और रिजर्वायर्स को कवर करें, जिनके अंदर डिफरेंट डेप्थ्स भी आती हैं, जिसकी डेप्थ ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, और बहुत ज़्यादा मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फिशेस की कलेक्शंस के लिए और इनकी साइज़ मेजरमेंट के लिए। उसके बाद क्या है कि सैंपल ऑफ 20 to 30 स्पेसिमेंस ऑफ ईच काइंड इन ईच साइज ग्रुप इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और डाटा विद रिगार्ड टू ईच फिश सच एज लेंथ, इसके फिशेस के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, लाइक उसकी लेंथ के बारे में, वेट के बारे में, या फिर सेक्स के बारे में कि उसका सेक्स का प्रोसेस क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है, उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। और at the end, thank you for your attention.